Hi everyone, I am Siddharth. Hello, I'm Vartika. So guys, we have finally moved out and this is our first week. So हमारे बाहर आते ही यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, बिल्कुल अच्छी वाली स्नोफॉल हो रही है and the temperature is around 0 to 1 degree Celsius. So I thought why not make a vlog of our first snowfall in Canada. So guys, हमने actually एक Airbnb book किया है. So I'll show you the Airbnb in our video. And actually the reason behind going for Airbnb is because हम यूनिवर्सिटी के पास में रह रहे हैं and अगर हम मंथ के बेसिस पे Airbnb बुक करते हैं so the rentals are relatively low. हमें एक रूम around $1100 का मिला है which is on sharing somewhat around $550-500 per month. So what do you think? Like staying nearby UBC, is it like beneficial or you can stay anywhere? No, I think it is beneficial because you'll get to know the place around here. And अगर स्टार्टिंग से ही आप कहीं दूर जाके रहने लगते हैं बिकॉज ऑफ बजट एंड एवरीथिंग, तो उसमें आप जिस काम आप यूबीसी में आए हैं, यूबीसी की यहाँ पे वैंकूवर में बहुत अच्छा नाम है यूबीसी का ऑब्वियसली, एंड आपको इतने पर्क्स मिलते हैं. और अगर आप एक बार वैंकूवर में ना रहें और यूबीसी की लाइफ ना एंजॉय करें तो आई थिंक दैट्स वेस्ट टू कम टू यूबीसी. इट्स बेटर कि आप यूबीसी के पास रहें, और बाद के लिए भी आई वुड रिकमेंड कि यूबीसी के कुछ टाइम पास रहें बिकॉज इट विल हेल्प यू टू नो द प्लेस हियर. लोगों से मिलेंगे आप यहाँ के, एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट बीइंग अराउंड इंडियन कम्युनिटी. आप थोड़ा और भी लोगों से मिलेंगे जो बाहर की नेशनलिटी के लोग हैं, एंड you'll get to know very different perspectives. So I think it's very interesting, and I'm really enjoying living here. So guys, I'll tell you the reason why we booked an Airbnb. It's because actually we are new to this place, so we don't have any family members or relatives over here. दो मेरे स्कूल के कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे and they stay in Surrey. So I'll tell you the reason behind going for Airbnb. It's that because अगर हम एक normal apartment भी लेते हैं तो अपार्टमेंट की कॉस्टिंग भी नियर बाय यूबीसी और अ सिंगल बेसमेंट अपार्टमेंट इट्स अराउंड $1,400-1,500, and if you go for a 2-bedroom apartment or a basement it's around $1,800. So rental is high, so we preferred booking an Airbnb for a month. उससे हमें 33% to 35% डिस्काउंट मिलने के बाद हमारा जो रेंट हम पे कर रहे हैं फॉर अ प्राइवेट रूम दैट इज़ अराउंड $1,100. So that's why we booked an Airbnb. And हम अपना जो नेक्स्ट घर है वो 1st of March से फाइनल करेंगे, and we've already looked 2-3 places, so I'll definitely make a vlog on that. So अभी के लिए हम इस महीने यहीं पे हैं, and very soon I'll make a video on the first week in Canada where I'll cover different things like what all things you need to do, like you need to buy a SIM and SIN number, so GIC, so all these things I'll make a separate video in detail for you guys. And regarding the winters, like लोग कहते हैं कि यहाँ बर्फ़ वगैरह नहीं पड़ती है वैंकूवर में, so normally नहीं पड़ती है but कभी कभार हो जाती है. So Vartika, like what would you suggest students who are coming to Vancouver or to this area, what they can get from India and what they can buy from here? I think thermals you should bring from India. You can buy them here as well, but I think starting के कुछ time में you are looking around the place and you are getting used to it. So एकदम से आते you will not get the best price, you will not get the best place to buy things. तो इसलिए थोड़ा सा सामान आप साथ आप लेके आइए, गर्म कपड़े, thermals, warm clothes, sweaters, and please do bring a jacket which is like -5 -10 तक जो आपको कवर कर ले. आई नो यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाएंगी, बट एक लेके आइए. जैसे हमारे पास हम ये लेके आए हैं, मैं ये लेके आई हूँ,
तो ये काफ़ी हेल्प कर रही है हमें, बिकॉज हम इंडिया से आए हैं और यहाँ पे जो फील्स लाइक टेम्परेचर होता है वो बहुत जो एक्चुअल में होता है उससे कम होता है। हम जो अपनी जैकेट्स लेकर आए हैं, लाइक दिस वन एंड इवन शी बॉट इट फ्रॉम डीकैथलॉन। सो हमें ये, मुझे तो ये मेरी -20 की जैकेट है। दिस इज़ लाइक वैंकूवर के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है, बट स्टिल लाइक मुझे स्नो में बिल्कुल फील नहीं हो रहा। एंड ये मुझे सेल पे मिली थी इन डीकैथलॉन। दिस इज़ लाइक हमें तो एक्चुअली, मैं फ्रैंकली बताऊं तो हमें यहाँ प्रॉब्लम आई बसेस में लाइक हम वो कर लेते थे, बोर्ड कर लेते बसेस, एंड देन जब हमारा स्टॉप आता था तो बस रुकती ही नहीं थी। सो हमें पता नहीं था कि यहाँ क्या सिस्टम है। सो देर इज़ एक्चुअली अ बटन इन द बस दैट वी हैव टू प्रेस। इट्स बिफोर योर लाइक, स्टॉप, या, ताकि सो इन नोटिफाई दैट हो जाए। इट्स रिटन स्टॉप। तो अगर उसको आप प्रेस करते हो, देन ड्राइवर गेट्स टू नो दैट आपको उतरना है और वो उस स्टॉप पे रोकता है। सो नॉर्मली अगर बस भरी हुई होगी तो इट विल, लोग होंगे जो उतरने वाले होंगे, बट अगर आप खाली ट्रैवल कर रहे हो या कम लोग हैं तो वो नहीं रुकेगी, वो सीधा चली जाएगी। तो हमें 2-3 बार के बाद समझ आया कि हाँ बस रुकती कैसे है। एंड देन एक इशू मुझे जो हुआ वो रोड क्रॉस करने में भी हुआ। हम फर्स्ट डे आए तो हमें पता ही नहीं पड़ा रोड कैसे क्रॉस करनी है, बिकॉज यहाँ उसका भी अलग वो एक है, लाइक व्हेन यू गो टू द क्रॉसिंग तो देयर इज़ अ बटन, यू हैव टू प्रेस दैट, एंड देन थोड़ा कुछ 30 सेकेंड्स के बाद यू विल सी दैट सिंबल ऑफ वॉकिंग, एंड देन सारी कार्स रुक जाती हैं। एंड व्हेन यू सी दैट सिंबल देन यू आर सपोज टू क्रॉस। 7,000 INR, बट मुझे सेल पे 5,000 की मिल गई थी। सो जैकेट्स अगर आप लाना चाहते हैं तो एक जैकेट पक्का अपना वहाँ से ले आए, नहीं तो यहाँ पे भी मिल जाती हैं, बट इट्स जस्ट दैट जब आप नए आते हो तो आपको पता नहीं होता क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सो रिलेटिंग टू इनिशियल एक्सपीरियंस, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट वीक इन कनाडा? क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? कोई नया स्टूडेंट आ रहा है, उसको क्या क्या इनिशियली प्रॉब्लम फेस करता है वो? ओके, सो अपार्ट फ्रॉम क्वारंटीन वाज वेरी स्मूथ, कहीं जाना नहीं था, घर में ही थे और ऑल सेंट्रली हीटेड था, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट वीक में आए थे, बस एयरबीएनबी था और हमने 1 महीने का बुक करा था, तो ये तो बहुत मतलब हमारे लिए एडवांटेज है। हमें यहाँ पे कुछ जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ा, वी टुक आवर टाइम, सब कुछ हम आराम से कर रहे हैं, घर भी हम आराम से देखेंगे और हमारे पास बहुत टाइम है अपनी यूनिवर्सिटी भी घूमने का, और हमने एक्चुअली काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं हम यहाँ पे रह, क्योंकि अब बहुत पास में है वैंकूवर सिटी से, तो यू कैन गो टू प्लेसेस, यू कैन एक्सपीरियंस द प्लेसेस हियर। उसके बाद आप फिर कहीं दूर मूव कर जाएंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता। एंड गाइस, मैं एक और बेनिफिट बता देता हूँ इफ़ यू आर स्टेइंग इन एयरबीएनबी। सो गाइस, हम जो रह रहे हैं, हम वेस्ट पॉइंट ग्रे में रह रहे हैं। इट इज़ लाइक 10 मिनट्स फ्रॉम UBC बाय बस। सो इसका बेनिफिट ये है कि बिकॉज यहाँ जो है इंडियंस बहुत ज़्यादा नहीं है इस रीजन में। सो हमारा जो एयरबीएनबी है उसमें सारी नेशनैलिटीज़ के लोग हैं, इवन कैनेडियंस, पीपल फ्रॉम यूरोप, तो बहुत सारे टाइप के लोग हैं, सब अपना अपना स्ट्रगल फेस में हैं। तो यू गेट टू नो डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट प्लेसेस, यू कैन मेक योर लाइक कनेक्शंस तुम्हारे अच्छे बन जाते हैं। एंड प्लस कनाडा में रेफरेंसेस बहुत चलते हैं, लाइक आपको शिफ्ट होना है तो उसमें बहुत बार ओनर्स रेफरेंसेस मांगते हैं। सो इफ़ यू आर स्टेइंग फॉर अ मंथ इन सच अ प्लेस, तो आपके पास लोग होते हैं, यहाँ का होस्ट होगा और लोग होंगे जो यहाँ बहुत टाइम से रह रहे हैं, आप उनकी रेफरेंसेस दे सकते हैं, विच इज़ लाइक एन एड ऑन। और आपका जो लिंक्स और नेटवर्किंग होगी दैट इज़ एडिशनल। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप आ रहे हो, आपको रीज़नेबल पड़ रहा है, तो एयरबीएनबी ले लो कुछ टाइम के लिए। बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ एक वीक के लिए ले लेते हैं एंड देन दे डू, तो वो भी एक तरीका ठीक है। सो गाइज, वन थिंग ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ अबाउट कंपस कार्ड। सो यहाँ पे जो कंपस कार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सबसे पहले आओ, सबसे पहले अपना क्वारंटीन ओवर जब आपका हो, सबसे पहले आप अपना कंपस कार्ड लो, बिकॉज दैट इज़ द कम्यूट पास ओवर हेयर। जस्ट लाइक इन इंडिया वी हैव मेट्रो कार्ड और समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे कंपस कार्ड होता है, उस पर आप बस में ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ स्काई ट्रेन है विच इज़ द मेट्रो ओवर है, उसमें ट्रैवल कर सकते हो। तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे पहले कर लेनी चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास कंपस कार्ड नहीं है तो आप कितना ऊबर करोगे, ऊबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो इसलिए कंपस कार्ड के लिए पक्का अप्लाई करो। सो अपार्ट फ्रॉम दिस कंपस कार्ड, व्हाट डू यू थिंक यहाँ ग्रॉसरी लेने में कितना प्रॉब्लम आ रहा है? जहाँ पे एक्चुअली हम हैं अभी, यूबीसी के पास है एरिया, बट यहाँ पे हमें आइडिया नहीं था इस जगह का, तो हमने जो घर बुक किया है वो इसके आसपास ना ही, मतलब एक्चुअली 700-800 मीटर्स बाद जाके बस स्टॉप आता है, तो बस स्टॉप आप जाएंगे, उसके बाद आप कहीं वॉलमार्ट वगैरह जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई बड़ा स्टोर नहीं है, सब छोटे छोटे स्टोर है, और छोटे स्टोर्स पे सामान जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। सो गाइज, हमारा जो घर है एक्चुअली यहाँ आसपास कोई वॉलमार्ट नहीं है। जो नियर बाय वॉलमार्ट है दैट इज़ इन बर्नबी, एंड वो बहुत दूर है यहाँ से। एंड एक और जो प्रॉब्लम हमें आई, हमें इनिशियली पता नहीं था, मैंने जबकि बहुत सारी वीडियोस देखी थी रिगार्डिंग वेयर टू बाय ग्रॉसरीज एंड ऑल,
तो सारे यूट्यूबर्स ने ये बताया था कि यू गो टू वॉलमार्ट, कॉस्को, सेव ऑन फूड्स, यहाँ वहाँ बड़े स्टोर्स पे जाओ। तो एक्चुअली दिस इज़ ट्रू। अगर आप एक नॉर्मल छोटे स्टोर पे जाते हो तो रेट्स आर ऑलमोस्ट डबल या 1.5 टाइम्स होंगे जो आपको वॉलमार्ट या कहीं मिलेगा। तो इसलिए किसी भी छोटी जगह से ग्रॉसरी मत लेना, अपने आसपास आप चेक कर लेना कि कहाँ पे आपका वॉलमार्ट है या बड़ा स्टोर हो, ताकि आपको रेट्स रीज़नेबल मिले। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको मिल्क का एग्जांपल देता हूँ। हमें मिल्क छोटे स्टोर पे कितने का मिला था? छोटे स्टोर पे हमें जो 4 लीटर वाला पैक था, यहाँ पे लीटर के हिसाब से मतलब मिलता है, छोटे पैक्स ही बड़े ही मिलते हैं, तो वो हमें कुछ $5.99 का मिल रहा था। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक $6 के आसपास, और यही अगर आप वॉलमार्ट से लोगे तो आपको कुछ $4 के आसपास का मिल जाएगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस। ये इनिशियली एक आध आइटम में नहीं पता पड़ता, बट जब आप पूरे अपने मंथ की ग्रॉसरी लोगे या 2 वीक्स की लोगे तो हर छोटे छोटे आइटम पे आपको $2, $1, $3 का फ़र्क आएगा। सो इसलिए जब आपको लेना हो तो आप थोड़ा बड़े स्टोर्स पे जाएं। So this is it, and I hope that you guys like this video, and if you do, then please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you guys. बाय बाय।